Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. As you know that we were discussing 2017 question paper part 1. We have already discussed the part 1 of the question paper, which was 10 questions of 2 marks each, that is 20 marks. And we will now proceed with part 2, which is of 60 marks. Here 8 questions are asked, out of which you have to answer any 5 questions. Now, before starting with part 2, I would like to tell you that I've already discussed 2019 and 2018 question paper. I have explained it in details properly on what are the type of questions that are asked and how should you frame the answers, how you should actually draw the diagrams and the little details that you have to label and mark and then explain them, and everything is being told to you in 2019 and 18's paper. You will see there are lots of concepts which were repeated just in a year. You will see there are lots of questions that were repeated and lots of concepts were repeated, and one of the concepts were asked as a doubt, and thus I would request all of you also, those who are watching this video, that if you have even the slightest of doubt regarding any concept, anything, any little of things, even if one person has a doubt, do ask me and there will be a video coming up for that. Does not necessarily have to be asked by 10 people or 20 people or 1000 people. It's nothing like that. Even if one person comes up with a doubt, there will be a video for that particular person clearing the doubt. It's all about helping you people rather than gaining just the views and the likes and all those things, because I know the importance of your class 12th board examination, and examinations are near now. Anytime your exams might and timetable might come, and I know that your preparations are on, and there is lots of pressure on you. You are quite tensed about it, so keep up your preparations. Along with that, do your question papers, because every year, every time your previous year question papers or last 10 years question papers are always an add-on. It's a plus advantage for all of you. It will help you know that the concepts or everything that you have been studying so long, whether you are actually able to answer them or not. You will be able to analyze yourself while you will be solving your previous year question paper. So it's very important that you solve them and strictly follow your syllabus and see my other videos also. And if it has been helpful to you or it is helpful to you, please do subscribe to my channel and like my videos so that you get the notifications and the latest updates all the time. You can also like my Facebook page. The link is in the description box, and all the videos that I have uploaded, the links are in the description box, which will be helpful for all the ISC students. So support me, support yourselves. Okay, so yeah, let's start with our part 2 discussion. We'll start with question number 2A, which says explain with the help of the diagram the relationship between total utility and marginal utility. This had been asked in 2019 as well. TU and MU के बीच में रिलेशनशिप. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपकी बुक में डायरेक्टली बनाया हुआ है, जहाँ पे TU और MU का बारे में बताया गया है कि जब TU राइज कर रहा है तब MU क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है. जब TU मैक्सिमम पे है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है, तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होता है. जब टोटल यूटिलिटी फॉल करना चालू करता है तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है. दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट. पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है इसके लिए, एंड देन आपको उसको यहाँ पे लिखना है. यू हैव टू राइट TU stands for total utility, MU stands for marginal utility. एंड देखिए ये स्लाइटेस्ट लिटिल जो डिटेल्स है यहाँ पे जो मार्किंग्स किए हुए हैं, X, Y, MU X है, ये नेगेटिव MU है क्योंकि नेगेटिव हो गया. यहाँ पे MU 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे TU MU. यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स. अगर आप सिर्फ डायग्राम करके छोड़ देते हो तो मार्क्स कटने का चांसेस बहुत हाई है. यू माइट नॉट गेट एनी मार्क्स. सो मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाओ, इनको मार्क करो. When TU reaches its maximum, marginal utility becomes 0. This is known as point of satiety. When consumption is increased beyond the point of satiety, total utility starts falling as MU becomes negative. MU curve has a negative slope when TU curve has a positive slope up to point P. Okay, so this is a nice example. Just एक diagram explain करो and आप पूरे process को part wise explain कर दो. This is how you get your 3 marks. Okay, so there's some marks for the diagram, some marks for the labelings, and some marks for the explanation. That's how you get your 3 marks.
Moving on to question number B, which says find the elasticity of demand of X and Y on the basis of the demand schedule given below and specify which one is more elastic. आपको बताना है elastic कौन सा है, किसका elasticity ज़्यादा है. तो यहाँ पे Px that is price of X दिया हुआ है, Dx that is demand of X दिया हुआ है in units, प्राइस ऑफ y दिया हुआ है एंड डिमांड ऑफ y दिया हुआ है 8 and 4, 10, 12, 8, 6 and 10, 25. ओके, सो यहाँ पे किया हुआ है, देखिए फॉर गुड x किया हुआ है, चेंज इन p इज इक्वल टू p1 माइनस p विच इज 4 माइनस 8 इज माइनस 4. एंड चेंज इन q कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं तो चेंज निकल जाता है. चेंज कैसे निकालता है, ट्राइंगल इज चेंज. सो चेंज कैसे निकलता है, आप इसको इससे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे चेंज निकल जाएगा. 8 को 4 से माइनस करते हैं तो चेंज इन p निकल जाता है. ओके, दैट्स हाउ इट्स डन. तो चेंज इन p निकला, चेंज इन q निकला. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे निकलता है, इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन q बाई q इंटू प्राइस बाई चेंज इन प्राइस. अब जो आप निकाले हो चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन q उसको लिख दो एंड p एंड q को लिख दो जो वैल्यूज दिए हुए हैं एंड दस यू गेट योर आंसर 0.4. और यहाँ पे वैसे ही आपको गुड वाई का भी करना है. यहाँ पे इलास्टिसिटी आया है 6, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गुड वाई इज मोर रियलिस्टिक क्योंकि गुड वाई का इलास्टिसिटी ज़्यादा आया है. ED इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाई का ज़्यादा आया है, वाई का आया है 6 और एक्स का आया है 0.4. सो बिकॉज एक्स का वाई का ज़्यादा है सो वाई इज मोर इलास्टिक. ओके, question number C says explain 4 reasons for the demand curve to be downward sloping. तो demand curve downward sloping क्यों है, इसका reason. Okay, so reasons for downward sloping demand curve. First is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वन ऑफ माई वीडियोज़ में, जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे रही हूँ. ज़रूर से देखिएगा, आपका पूरा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ. ओके, सो उसके पहले मैं आपको बता दूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज कि डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग मतलब होता है जो घटता चला जाता है, फॉल्स एंड फॉल्स. एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज फर्स्टली, यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कोमोडिटी. एक कोमोडिटी में कितना वांट को सेटिस्फाई करने का पावर होता है वो हो जाता है यूटिलिटी. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल यूनिट का. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक एडिशनल यूनिट. तो अगर एक एडिशनल यूनिट का, अगर मैं अब इसको जोड़ दूं, एक एडिशनल यूनिट का क्या सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, तो ये कहता है कि जब आप कंज्यूम करते चले जाते हो 1, 2, 3, मैंने आपको पहले 1 मैंगो दिया, आप बहुत भूखे हो, मैंने आपको 1 मैंगो दिया, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसको खाओगे, लाइक दैट्स द बेस्ट मैंगो यू हैव एवर हैड बिकॉज यू वर वेरी हंग्री. तो उसका सेटिस्फैक्शन पावर बहुत हाई होने वाला है. सेकेंड वाला मैंगो जब मैं आपको देती हूँ तो उसका सेटिस्फैक्शन पावर कम होता है, बट स्टिल दैट हैप्पीनेस इज देयर व्हाइल यू हैविंग द सेकेंड मैंगो बिकॉज दैट हंगर इज स्टिल देयर. थर्ड में क्या हो जाता है कि आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम और हो जाता है एंड आपका धीरे धीरे आप स्टमक फुल होते जा रहा है. So as your stomach is getting full, the satisfaction is getting lesser and lesser. तो ये diminish होता चला जा रहा है. As you come to the 6th and the 7th mango, either 6th or the 7th mango, you will see कि satisfaction बिल्कुल कम हो गया, negative के तरफ चलने लग गया. So that's what is law of diminishing marginal utility. According to this law, as consumption of a commodity increases, जैसे ही consumption बढ़ता है एक mango से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, तो क्या होता है, marginal utility कम होता चला जाता है, diminishing to a consumer. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. तो क्या बोल रहा है कि जब आप एक additional unit पे करते रहते हो तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो, जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक सपोज कोई भी एक चीज़ 20 रुपये में पड़ेगा, तो आप बोलोगे भैया हम 2 लेंगे तो आप इसका 30 लगा दीजिए. ऐसे तो इट्स लाइक 20 + 20 40. अगर आप 2 खरीदते हो तो 20 और 20 40 रुपये लगेंगे, पर आप बोलोगे कि भैया हम 2 लेंगे तो आप हमारा 30 रुपये में कर दो.
दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जब एडिशनल यूनिट एक एक यूनिट बढ़ता चला जाता है तो आप प्राइस कंज्यूमर क्या कोशिश करता है कि कितना कम वो दे सके। वो 40 नहीं देना चाहता, वो 30 ही देगा। अगर वो और ज़्यादा खरीदता है, वो अगर बोलेगा भैया मैं 1 डजन पूरा खरीदूंगा तो आप मेरे को और कम कर दो। तो दैट्स हाउ वी रोल एंड दैट्स हाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है डिमांड कर्व में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकम इफेक्ट। तो आपने जैसे देखा कि मैंने आपको बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छे से आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही कोई भी आपका डाउट हो कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप ज़रूर मेरे को पूछिए, आई विल बी हेल्पिंग यू विद इट। एंड नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? इनकम इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम होता है कि आपका परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो उसको रियल इनकम बोलते हैं। विथ अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड्स। तो क्या बोल रहा है कि जब जब हमारा प्राइस फॉल करता है, दैट मीन्स अगर आप 25,000 आपका सैलरी है, सपोज आपका 25,000 क्या है? सैलरी है। एंड ओके 25,000 आपका सैलरी है एंड यू आर परचेजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपका घर का ग्रोसरीज आता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आता है, वहाँ पे आपके 15 से 20,000 रुपये खर्च हो जाते हैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों में, घर खर्चों में। एंड जब आपको पता चले कि नेक्स्ट मंथ में आपका सब कुछ का प्राइस फॉल हो गया, सडनली एवरीथिंग बिकेम सस्ता, तो आपका क्या होगा? अब आप जितना चीज़ था उतना से ज़्यादा खरीद सकते हो और भी वैरायटी ऑफ चीज़ खरीद सकते हो, थोड़ा सेविंग भी कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया? आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो बोलते हैं जब प्राइस गिरता है कोई भी चीज़ों का तो रियल इनकम इंक्रीज हो जाता है एंड दस डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व द कमोडिटी एक्सपैंड्स एंड दस इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। एक का दाम अगर एक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हैं। जैसे चाय का प्राइस बढ़ गया तो हम लोग डिमांड किसका बढ़ जाएगा? कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स इट बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई, अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वाई। Tea and coffee are substitutes. With a fall in the price of tea, it is substituted in place of coffee. It is expansion of demand due to the substitution effect. Next क्या हो सकता है? Size of consumer group. When price of a commodity falls, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand expands. दूसरा क्या हो सकता है? Different uses. A good may have several uses. जैसे मिल्क का बहुत सारा यूज़ हो सकता है, कर्ड बनाने के, चीज़ बनाने के, बटर बनाने के। तो अगर प्राइस मिल्क का कम हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली द मिल्क डिमांड फॉर मिल्क एक्सपैंड्स। तो अब जब लोग सोचेंगे दूध सस्ता हो गया, चलो आज खीर बना लेते हैं, आज दही बना लेते हैं, आज घर पे ही बटर बना लेते, चीज़ बना लेते, घी बना लेते, तो कुछ भी बना लेते, तो घर पे ही बना लेते। तो क्या हो जाएगा? लोग ज़्यादा मिल्क खरीदेंगे। मिल्क का प्राइस कम हो गया तो लोग मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा खरीदने का कोशिश करेंगे या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मिल्क खरीद के मिल्क का प्रोडक्ट्स बनाने का कोशिश करेंगे। सो देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ मिल्क। ओके, सो दैट्स हाउ वी फिनिश विथ क्वेश्चन नंबर 2। ये था क्वेश्चन, ये क्योंकि ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन, रीजन वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखा गया, बट यू विल हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। तो आप कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। दैट्स हाउ 6 मार्क्स क्वेश्चंस आर डन। Okay, so next question number 3. Question number 3 says the difference between AC curve and ABC curves decreases with increase in output, but the two curves never touch each other. Justify the statement with the help of a diagram. तो आप देखोगे कि हमेशा ये डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 3 और 6 मार्क्स में बेसिकली। सो ठीक है, तो चलिए ये वाला डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, पहले AC और ABC कर्व देख लेते हैं। ये AC कर्व है एंड ये ABC कर्व है। ये दोनों जाते एक साथ है बट ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है, वाई दे डोंट टच ईच अदर। यहाँ पे देखिए ये लोग जाएंगे एकदम पास से भी चले जाएंगे बट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन एवरेज टोटल कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व गेट्स स्मॉलर एज प्रोडक्शन T इंक्रीजेज। यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये इतना प्रोडक्शन था इतना लेवल तक, तब हम लोग का इतना गैप था। जब जब आउटपुट बढ़ता चला गया गैप कम होता चला गया। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे आउटपुट कितना ज़्यादा कम है। यहाँ पे आउटपुट कितना ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का आउटपुट है और यहाँ पे
AC और AVC के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत कम है. तो ATC curve is far above the AVC curve at early levels of output because the average fixed cost is high. Percentage is a high percentage of average total cost, but ATC curve tends to come closer to AVC at higher levels of output because the average fixed cost accounts for a relatively smaller percentage of the average total cost. Now, मतलब शुरू में एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज कॉस्ट किस दो चीज़ों से बना होता है, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बना हुआ होता है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि शुरू में आप देखोगे कि AFC जो है उसका वजन काफ़ी ज़्यादा है दैन AVC. द इम्पोर्टेंस ऑफ AFC इन द स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है. इसके वजह से AC और AVC के बीच में बहुत दूरियां होती है क्योंकि AFC बहुत बीच में घुस रहा होता है. बट एज यू मूव फर्दर विथ योर आउटपुट, तो आप देखोगे कि AFC का वजन कम हो जाता है, AFC धीरे धीरे दूर होता चला जाता है और AC और AVC पास आ जाते हैं. तो दैट्स हाउ इट इज़. इसीलिए और AC और AVC कर्व पास हो जाते हैं, पहले दूर होते हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग नाउ दैट ATC कर्व नेवर टचेज AVC कर्व बिकॉज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगा ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है. यहाँ पे एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बन गया जो कि कभी चेंज नहीं होता जनरली शॉर्ट रन में. तो क्या होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वहीं का वहीं है एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चलता जाता है, बट दे डोंट टच ईच अदर बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. इसीलिए इसमें AC कर्व में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट एडेड रहता है, इसीलिए ये हमेशा ऊपर और ऊपर चलता जाता है और AVC के साथ कभी टक्कर नहीं खाएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रॉपर खर्चा है जो हमेशा एड ऑन होता ही रहता है. सो AVC AC के साथ कभी नहीं टकराएगा. Thus distance between the zero ATC curve and the AVC curve gets smaller as the level of output increases. Okay? So next question पे चलते हैं. Next question says explain any two characteristics of indifference curve. ये भी ISC का बहुत ही important और बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है. इसको भी प्लीज़ ज़रूर से अच्छे से देख के जाइएगा. कभी भी characteristics of indifference curve पूछे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डायग्राम बनाओ, जितना हो सके उतना आप डायग्राम बनाइए. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि indifference curve, ये देखिए they have also done the diagram here. IC curve के बारे में characteristics लिखना है कोई भी दो. So an indifference curve always slopes downward. This characteristics implies that to increase the consumption of X good, the consumer has to reduce the consumption Y good so as to remain at the same level of satisfaction as shown in the given diagram. तो ये वाला एक हो गया डायग्राम आपको बनाना है. ये वाला x का, ये वाला x1 का. यहाँ से आप y को कम कर दिए तो x का बढ़ गया. दैट इज़ व्हाट दे ट्राई टू शो यू कि जब हम लोग y का कंजम्पशन कम करते हैं तो x का बढ़ जाता है और अगर x का कम करोगे तो y का बढ़ जाएगा टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, और यहाँ पे वही चीज़ को ये लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. That's what you have to do all the time. यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यहाँ पे लेबलिंग सही से करने हैं. A पॉइंट, P पॉइंट, ये IC कर्व है, इसको यहाँ पे x एक्सिस है, x एक्सिस में क्या है, x गुड है, y एक्सिस है, y एक्सिस में क्या है, y गुड है. ये सारा लेबलिंग्स आपको करना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू टेल यू कि लिटिल माइन्यूट डिटेल्स भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे. So of x good from OX to OX1, the consumer has to reduce quantity of y from OY to OY1. और second क्या है, indifference curves are convex to the origin. This property is based on the principle of diminishing marginal rate of substitution. It implies that as the consumer substitute x for y, the marginal rate of substitution between them goes on diminishing as shown in the following figure. यहाँ पे देखिए AB, ये AB है which is greater than CD वाला and CD वाला is greater than EF वाला. That is what they are saying कि ये diminish होता चला जाता है and thus this IC curve is ऐसे convex shape में. Next question number C पे चलते हैं. Question number C says
डिस्कस द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन यूजिंग MR एंड MC अप्रोच। इसके बारे में पहले भी पूछा गया है वन ऑफ द क्वेश्चन पे 2019 या 2018 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 के क्वेश्चन पेपर में आई गेस पूछा गया है, जो भी है, बट दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाना है। सो दिस इज वन ऑफ देम। इन ऑर्डर टू नो द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, अ फर्म कंपेयर्स द मार्जिनल कॉस्ट विथ मार्जिनल रेवेन्यू. So first condition of a firm's equilibrium is that marginal cost must be equal to marginal revenue. It is necessary but not sufficient condition of equilibrium. A firm may not get maximum profit even when its marginal cost is equal to marginal revenue. So it must fulfill second condition of equilibrium as well. तो यहाँ पे 2 कंडीशन फुलफिल करने होते हैं, एक को करना सफिशिएंट नहीं है, दोनों को करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक तो है कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दूसरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व from below, or slope of MC curve should be steeper than the slope of MR curve. According to marginal analysis, a firm would therefore be in equilibrium when the following 2 conditions are fulfilled. 1, MC is equal to MR, and दूसरा MC curves cut the MR from below, and this is how diagram should be. अब यहाँ पे देखिए 6 मार्क्स था, तो जस्ट द एक्सप्लेनेशन wasn't enough, there was a diagram that had to be there, and यहाँ पे डायग्राम किया है, एंड कितने नीटली एंड प्रॉपरली हर एक छोटे छोटे चीज़ों को मार्क किया गया है। एक्स एंड वाई तो लिखा ही गया है, साथ में एक्स एंड वाई में क्या है, ओ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, आउटपुट, यहाँ पे 2 डायग्राम्स आएंगे, 2 लाइन्स आएंगे आउटपुट में, जिसमें एक एन होगा और एक एम होगा, 2 मार्किंग्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाओगे MC कर्व का, उसमें आपको लिखना पड़ेगा A स्टैंड्स फॉर व्हाट, E स्टैंड्स फॉर व्हाट। यहाँ पे जो ये प्राइस वाला लाइन है, ये क्या है, यहाँ पे P इक्वल्स AR इक्वल्स MR होता है, तो दिस इज ऑल्सो द MR कर्व, और यहाँ पे ये AR और MR कर्व सेम होता है यहाँ पे, बिकॉज ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है। सो यहाँ पे P इक्वल्स AR इक्वल्स MR होता है, एंड MC नीचे से बिलो से कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर व्हाट, A पॉइंट क्या बता रहा है, E पॉइंट क्या बता रहा है, N M सारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे दिस PP इज average revenue, that is price per unit, as well as marginal Q revenue curve. It is clear from this figure that MC curve is cutting MR curve PP at 2 points. एक A पे कट कर रहा है और एक E पे कट कर रहा है। Point A cannot indicate the position of equilibrium of firm, as a point A marginal cost of firm is always falling, or we can say MC curve is not cutting MR from below. ओके तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दे आर सेइंग कि यहाँ पे 2 पोजीशंस है जहाँ पे कट हो रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो ए वाला पॉइंट है, ये क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है MR कर्व फॉल कर रहा है। इट्स नॉट कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ये तो खुद ही फॉल करता जा रहा है। इट्स नॉट कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो। बिलो से कट करना मतलब क्या होता है, नीचे से आके ऊपर कट करना। तो यहाँ पे ये देखिए E पॉइंट पे ये नीचे से MC कर्व आके MR को कट कर रहा है। यहाँ पे सी E पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये MC कर्व नीचे से आकर, दिस इज द AR एंड MR कर्व, दिस इज द MR कर्व, एंड यहाँ से MC कर्व आके इसको नीचे से कट कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, और ये E पॉइंट पे हो रहा है, दस A पॉइंट पे नहीं हो रहा है। सो A कैन नॉट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बट E कैन। ओके यहाँ पे E क्या बता रहा है, बट E पॉइंट शोज द फर्म इज प्रोड्यूसिंग OM यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इफ द फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन OM आउटपुट, इट्स मार्जिनल कॉस्ट विल एक्सीड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट हैज टू इंकर लॉसेस। नाउ क्या होगा, E पॉइंट देखो, E पॉइंट पे अगर आप कर रहे हो तो ये आपका आउटपुट लेवल है। इसके आगे अगर आप जाते हो तो क्या हो जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब क्या है, रेवेन्यू मतलब आपका जो अर्निंग है वो तो आपका इस लेवल पे हो गया, और आपका मार्जिनल कॉस्ट जो कि आपका खर्चा है वो आपका बड़ा हो गया, दस आप लॉस करोगे। तो आप ये जो E वाला पॉइंट है ना, एग्जैक्ट इधर तक आप करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट E
Thus, point E will represent the equilibrium of a firm. At this point, both the conditions of equilibrium are being fulfilled. पहला कि marginal cost is equal to marginal revenue, देख लीजिए E point पे क्या है, MC curve is equal to MR curve, and दूसरा क्या है, MC curve is cutting the MR curve from below. MC curve नीचे से आके MR को कट कर रहा है, thus it is the equilibrium point. तो यहाँ पे बोल रहा है point E is the equilibrium position. So that's it with our I had only discussed 2 questions today, that is 2 and 3 and I will soon come up with the rest of the questions, and I hope you liked my video. If you have liked my video, do give a thumbs up and do subscribe to my channel so that you keep getting these important discussion on the question paper. ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. So follow कर लीजिए, subscribe कर लीजिए, and thank you so very much. Bye bye.